Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Okay, so welcome to the मुझे तो हिंदी में एक मुहावरा है, दिल बाग बाग हो गया, तो हमारा क्वेश्चन भी कुछ वैसी ही फीलिंग आज देगा, गार्डन गार्डन. ओके, सो द टू कैरेक्टर्स दैट यू सी, ये गार्डन में आज क्यों है, खेल कूद क्यों रहे हैं. पहले तो उनके साथ मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ. तो यू हैव श्रेयास, यू हैव मृणाल, और इन द क्वेश्चन कोई रहस्य की बात नहीं है. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1. ओके, हाँ, व्हेन यू एक्चुअली look at the question and do the necessary markings. Again, sir, which question is this, which page is on? Title, my dear, title of the video please देख लेना, चेकआउट कर लेना, टेक्स्ट बुक में देख लो. हाँ, आप जब देखोगे तो ये फीलिंग ज़रूर आएगी, अरे दिल आज तो बाग बाग हो गया. क्यों? इससे तो बहुत डिफ़िकल्ट सम हमने किए हैं. यस, मैं तो ये खुद आपको सामने से कहूँगा, इससे बहुत डिफ़िकल्ट सम आपने किए हैं. For the past 4-5 lectures, there is a different level of adjustments that you have done. ये तो कुछ नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा, बड़े आसानी से हो जाएगा. तो let me solve it. वेल, आसान हो ना हो, मुश्किल हो ना हो, सॉल्व तो करना ही है, क्योंकि मार्क्स तो उसके लिए मिलेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. आई होप आपकी तैयारी एज फार एज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रफ वर्क होता है बट हो चुका है, एंड एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. हाँ, तो ये कोई हाफ वाला वेराइटी नहीं है. ओके, कभी कभी होता है ना हाफ बॉइल्ड एग, वैसा नहीं होगी, ये पूरा कुक हो चुका है, यह हमको करना है. सो राइट फ्रॉम दी अबाउ, कैपिटल ऑफ श्रेयास एंड मृणाल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा. अब परचेज ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, बिल रिसीवेबल एसेट, बिल पेएबल लाइबिलिटी, कमीशन इज अ माइंड जॉब, सो P&L अकाउंट, सैलरी P&L, इंश्योरेंस P&L विथ अ हिडन एडजस्टमेंट. क्यों? ब्रैकेट में पढ़ो, 9 months, कुछ तो गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है ढूंढ लेंगे बाद में. प्रीपेड रेंट, अच्छा दिस इज एन एसेट. अब प्रीपेड के आगे कुछ भी होने दो, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस फॉर द फ्यूचर, इट्स एन एसेट, ओनली वन इफेक्ट. क्रेडिटर लाइबिलिटी, डेटा एसेट, पोस्टेज ऑफिस से होता है कुरियर का काम, P&L. प्रेमाइसिस प्रॉपर्टी एसेट, फर्नीचर एसेट, बैड डेट अपना जो फॉर्मूला है उसमें लिख देंगे, बन्नो B, P&L. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट. इनवर्ड ट्रेडिंग है, आउटवर्ड P&L है, क्योंकि वन इज़ बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, द अदर इज़ आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग. अभी पुरानी खबर है, ये कोई नेशनल हेडलाइन तो है नहीं. दिस इज़ ओपनिंग स्टॉक, सो
आई थिंक इन वन ऑफ द लास्ट 2 लेक्चर्स ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, मैंने कुछ बोला भी नहीं उसके बारे में, बिकॉज इट शुड नॉट बी अनयूजुअल फॉर यू. सो हाउ इज दिस गोइंग टू बी अ करेक्ट क्वेश्चन? देर इज नो ओपनिंग स्टॉक. सो व्हाट हैपन्स? ओके, इफ इट्स अ ब्रांड न्यू शॉप, न्यू कंपनी, तो देयर विल बी नथिंग एट द बिगिनिंग ना, खाली रहेगा. ओके, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर ही इज़ नॉट वेयरिंग सूट बूट, ओके, ही इज़ नॉट इवन वेयरिंग पैम्पर्स. ओके, देयर इज नथिंग. ओके, तो इट्स लाइक दैट. दुकान में भी कुछ होता नहीं, सब खाली होता है. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा. हाँ, क्लोजिंग स्टॉक होता है नॉर्मली. ओके, हाँ. सो ये है ओपनिंग स्टॉक. रिटर्न क्रॉस कनेक्शन, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, विच आई विल डू लेटर, बट है ट्रेडिंग. वेजेस ट्रेडिंग, हाँ, बट आउटस्टैंडिंग इज लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग के आगे कुछ भी बोलो. फर्स्ट इफेक्ट, वेल नॉट फर्स्ट इफेक्ट, ओनली वन इफेक्ट, लाइबिलिटी. हाँ, तो मार्किंग हो गए. क्लोजिंग स्टॉक देयर इज नो मार्किंग, तो मैं करता भी नहीं हूँ. आउटस्टैंडिंग में सैलरी आप एक स्टार कर लो, आप कमीशन को एक स्टार कर लो, फर्नीचर को आप डिप्रिशिएट करो, मतलब बाद में, बट अभी तो स्टार कर लो. फर्दर बैड डेब्ट्स, what is that? That's not a RDD, it is further bad debts, तो एडिशनल बैड डेब्ट, डेटर को एक स्टार कर लो. ओके, गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अनफॉर्चुनेटली आग लग गई, गोदाउन में आग लग गई क्योंकि गुड्स को नुकसान हुआ. एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम फॉर 2000 ओनली. फॉर दोज ऑफ यू हु आर लाइक, सर ये क्या है डायलॉग, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम? देखो भाई, ऐसा होता है कि हमारे गोदाउन में आग लग गया, एक बुद्धिमान बिजनेसमैन अपने दुकान का इंश्योरेंस कराता है, विच इज़ लाइक अ प्रोटेक्शन, बॉडीगार्ड. जब बॉडीगार्ड के रहते हुए आग लगता है तो यू विल क्वेश्चन द बॉडीगार्ड, तू था, कैसे आग लगी, अब तू भरपाई करेगा. तो दैट इज व्हाट यू आर टेलिंग द इंश्योरेंस कंपनी, हमने तो आपसे लिया था इंश्योरेंस, आग कैसे लगी, अभी आपको भरपाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स दे हैव टू पे. ओके, फ्री का नहीं होता, आप उनको प्रीमियम देते हो ना, आप बॉडीगार्ड को सैलरी देते हो. सो यू आर होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल. तो दे आर लाइक यस, झगड़ा मत करो, हम आपको पे करेगी. उसको कहते हैं क्लेम. ओके, सो 5000 का आपका गुड्स जल गया एंड ये ऊपर कहता है कि 2000 दे विल पे यू. वो पूरा पैसा नहीं दे रहे, वो बोलेगा नहीं तुम्हारा भी तो गलती है, तुम्हारा भी वायरिंग बराबर नहीं था, तुम्हारा भी देखो इधर से लीक उधर से लीक था. ओके, तो तुम्हारा भी गलती है, तुमको भी नुकसान सहना पड़ेगा. दे विल गिव यू 2000. ओके, तो बाकी का 3000 लॉस बाय फायर होता है. ओके, सो राइट नाउ दिस इज वन ऑफ द स्पेशल एडजस्टमेंट्स जो हमको 1, 2 और 3 बार लिखना पड़ता है, विच आई विल डू लेटर. ओके, आई विल डू लेटर. एंड लास्टली जो मैंने स्टार्ट में बता दिया, जो एकदम हैप्पी का सीन था ना, श्रेयास एंड मृणाला शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. सो दैट्स रेडी, ऑलरेडी आई हैव रिटन इट. इट विल बी यूजफुल व्हेन वी हैव नेट प्रॉफिट, मोस्ट प्रोबेबली नेट प्रॉफिट. ओके, देन दैट इज इट. और कुछ करना नहीं है, अब पोस्टिंग करने हैं. तो अगर आपका फॉर्मेट रेडी है, यू प्लीज़ गेट स्टार्टेड विथ मी. द स्पीड विल बी लिटिल फास्टर. ओके, यू शुड बी एबल टू हैंडल इट. इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम एज सच. फर्स्ट, कैपिटल अकाउंट कितना, 35 and 20,000. तो लेट्स गो टू द पार्टनर्स कैपिटल एंड लेट्स पोस्ट इट. 35 and 20,000, श्रेयास, रोनल. नेक्स्ट, परचेसेस, एंड उसके बाद में सेल्स भी है, तो वहीं पे लिख लेते. परचेज को इनर कॉलम, सेल्स को इनर कॉलम. ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्वियसली ना. सो अबाउट 37,800 एंड सेल्स 66,700. नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल. अगेन आमने सामने है तो एक साथ में लिख लेता हूँ मैं. बिल रिसीवेबल 8,000 एंड 6,500. लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, तो बिल रिसीवेबल पहले 8,000, bill payable बाद में 6,500. Obviously the first 5 lines are to fit the answer of capital. Next, commission P&L अकाउंट में आएगा, सैलरी P&L अकाउंट में आएगा, लीवर लाइन. ओके, कमीशन लीवर लाइन, इंश्योरेंस P&L अकाउंट में, उस पर तो हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन. तो अगेन एक साथ बट एक एक करके. इट साउंड्स वेरी अजीब बट आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग, क्योंकि हम एक साथ में ही लिख रहे हैं बट एक एक करके लिख रहे हैं. ओके, तो लाइक टेक्निकली में ग्रामेटिकली गलत तो नहीं होगा. हाँ, बाकी एडजस्टमेंट्स तो जब आएंगे तब कर लेंगे हम. फिर आता है प्रीपेड रेंट,
एसेट साइड पे जाएगा तो मैं लिख लेता हूँ जस्ट अबाउट मी 3000. You will notice and maybe you are saying कि sir it's going at a faster speed. Please note you have to understand the subject, the debit credit journal entries, calculations, but at the same time आपको speed पे भी ध्यान देना है. Okay, the speed, the writing speed, hopefully you don't compromise with the presentation. Okay, but the writing speed थोड़ा थोड़ा करके तो fast होना ही चाहिए. तो जब तक मैं force ना करूँ, okay, तो वो होगा नहीं. So I'm just trying to do that. नेक्स्ट क्रेडिटर डेटर, तो लाइबिलिटी एसेट बैलेंस शीट. तो पहले क्रेडिटर आ गया 48,900. अभी ऊपर डेटर आ जाए 25,000. आप पोस्टेज P&L में लिख लेते हैं 1,700. द फॉर्मूला ऑफ बन्नो इज द सेम, वो आप ऊपर नीचे कहाँ पे भी फिट करना. नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रेमाइसेस एंड फर्नीचर, दोनों एसेट है. फर्नीचर में देर इज वन एडजस्टमेंट, तो आई लीव वन लाइन फॉर दैट. जस्ट अबाउट मी 20,000. देन कम्स बैड डेप्ट. उसके लिए वी ऑलवेज हैव अ वेरी एक खास जगह है हमारे दिल में, हमारे फॉर्मेट में 500. कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, दोनों एसेट है. कैश इन ट्रांजिट कहाँ पे भी रहने दो कैश, कैश तो अच्छी बात है ना, एवरीबडी वांट्स टू हैव कैश. सो कैश इन हैंड इधर उधर, कैश एट बैंक इधर उधर. नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, वो प्रोडक्शन के पहले, कैरेज आउटवर्ड प्रोडक्शन के बाद. नाउ दिस इज़ व्हाट आई थिंक, आई एग्जैक्टली डोंट नो कौन सा ये लेक्चर है, बट 25-26 लेक्चर है अभी राइट नाउ. तो अगर आप सोचते हो सर कैरेज इनवर्ड यहाँ पे क्यों है, आउटवर्ड वहाँ पे क्यों है, देन तो आपका फाउंडेशन, बुनियाद तो अच्छा नहीं है. मतलब आई फील बैड टू से दैट, but it's a compulsory topic. You have to be good at it, and you have missed out lectures at the beginning, so you have to watch those lectures. My request, I can only हाथ जोड़ के मैं विनती कर सकता हूँ. I can't do anything else because गाड़ी तो okay, a great actor has said the show must go on. कि मतलब कुछ भी होता रहेगा, आग लगेगी, चोरी होगी, मृत्यु होगी, but the show must go on. यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग ओके आई हैव टू गो ऑन विद दी लेक्चर्स. स्टॉक ओपनिंग है, रिटर्न्स को हम क्रॉस कनेक्शन करेंगे. तो 1200 विल गो टू सेल्स रिटर्न, 1800 विल गो टू परचेज रिटर्न. सो फर्स्ट आई विल राइट दी ओपनिंग स्टॉक 22,500 एंड देन द क्रॉस कनेक्शन. तो पहले सेल्स रिटर्न आएगा 1200, द आउटसाइड आंसर 65,500 एंड देन परचेज रिटर्न आएगा एंड द आंसर आउटसाइड 36,000. ओके, सो अदला बदली हमेशा होती है. इट्स नॉट कि आज ही कुछ खास हो रहा है. वेजेस लिख लेंगे ऑन दी इन दी ट्रेडिंग अकाउंट. आउटस्टैंडिंग वेजेस वो तो एकदम दूर, लाइबिलिटी से. ओनली वन इफेक्ट क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है ना, इसलिए वेजेस 3,100 एंड ऑल्सो द लाइबिलिटी साइड वाला. That's the last item in the trial balance. There are I think around 5 points of adjustments, but एक hidden है, वो अलग है, वो इंश्योरेंस का है. वो कैसे बोला है, एक्चुअली कुछ बोला नहीं, इतना ही बोला है इंश्योरेंस 9 months 9,000. आप सियाने हो, आप समझ लो. तो इट्स लाइक दैट. ओके, मतलब यू अंडरस्टैंड, यूज योर विजडम. ओके, तो व्हाट डू आई हैव टू थिंक? वेल, दिस अकाउंट्स इज ऑलवेज फॉर 12 months. If you have paid insurance or any other expense for less than 12 months, it means you have not fully paid. 9 months भरोगे 9, तो 3 महीना तो बाकी है ना. yes, तो वो बोल नहीं रहा, पर वो ऐसे बोलना चाहता है कि you are dealing with outstanding insurance which is outstanding. तो that's pretty much it. मतलब I'm showing the working, but I've done this previously. तो ऐसा नया नहीं है. ओके, हमने ये पहले हमने प्रीपेड भी ये स्टाइल में किया. वी इवन डन आउटस्टैंडिंग बिफोर. सो 9 months का दे हैव गिवन 9,000. आपको ढूंढना है 3 महीने का कितना, तो दैट्स हाउ इट इज.
दैट्स हाउ इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ, तो क्या करेगी, 3 इंटू 9000 डिवाइड बाई 9 कितना आता है, वो डिपेंड करता है आपका मैथमेटिकल नॉलेज कितना है। सो यू डू द कैंसिलेशन, you should get you नहीं, everybody should get 3000. So the outstanding insurance in this problem, it can be with advertisement, it can be with wages, salaries, होने के लिए तो किसी के साथ भी हो सकता है, बट आज के इस क्वेश्चन में it is with insurance. So if we go to insurance, which you should, insurance के अंदर आप प्लस करो एंड 3000 ऐड करके बाहर डालो, 12000. सेकेंड इफेक्ट आना चाहिए ना, क्यों नहीं आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए. सो हियर, ओके, सो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3000. ओके, सो नाउ लेट मी गो ऑन अहेड. हाँ, बाय द वे डोंट वरी सर, वो ऊपर की 2 लाइन क्यों छोड़े हैं. ओके, यू डोंट हैव टू लीव इट. ओके, वहाँ पे देयर इज सम अदर आउटस्टैंडिंग्स विच विल कम, वो ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट, first adjustment, closing stock. Hey, that's the most simplest one. In fact, if there are 2 values, I take the lesser one, but they have only given me 30,000. So जितना simple हो सकता है उतना simple closing stock होता है. Here 30,000 and here 30,000, here and here. Okay, last time we had stock of stationery. Okay, तो वो था closing stock of stationery, वो भी आया था asset side पे, बट ये नहीं है आज, ये नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक है, गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी 1200, लेट मी गिव 2 इफेक्ट्स फॉर दैट. देन कमीशन 400, लेट मी गिव 2 इफेक्ट्स फॉर दैट. सो सैलरी इज 1200. वेयर इज सैलरी? इट शुड बी इन PNL, मतलब वो उसका घर है, और कहाँ पे जाएगा. सो सैलरी में प्लस करो. यू कैन राइट शॉर्ट फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटस्टैंडिंग का शॉर्ट फॉर्म. बाकी I'll put the total outside. That's first effect. First effect. Second effect, liability side पे. तो ये आ गया, ऊपर आए नीचे आए, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, that's fine, that's fine. What about commission? हाँ, to solve that also ना, उसका भी आउटस्टैंडिंग है, उसको भी ऐड करो, बिकॉज आउटस्टैंडिंग मीन्स आज का खर्चा, नॉट कल का. कल का प्रीपेड होता है. आउटर कॉलम टोटल, तो वो हो गया फर्स्ट इफेक्ट, एंड जस्ट लाइक सैलरी. सेकेंड इफेक्ट के लिए चले जाओ लाइबिलिटी साइड पे, वहाँ पे लिख लो. सो आउटस्टैंडिंग कमीशन 400. ओके, सो वेरी सिमिलर, एंड अगेन नथिंग स्पेशल अबाउट इट. इनफैक्ट आई हैव टोल्ड यू कि पूरे क्वेश्चन में देयर इज नथिंग स्पेशल, कि इट्स सरप्राइजिंग कि मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर देयर इज अ वेरी सिंपल वन विच इज क्रॉप्ड अप. 1 डन, 2 डन, 3 depreciate furniture. Let's do, क्योंकि if in your chair, okay, now there is a chair which I am sitting on. Okay, so I'm not standing, I'm sitting on a chair. I'm using it for around what 2 years. Okay, तो मतलब वो पहले इतना कुशन था, अभी उसका कुशन इतना हो गया. Obviously ना, हम अपना तशरीफ उस पर रखता है, तो दब के सो मतलब the value has gone down, the size has reduced. That's depreciation. That's what you से वैसा सोचना होना चाहिए. सो 10% माइनस किया, ये यहाँ पे 2000, और ये यहाँ पे गया 18,000. प्लीज राइट 2000, 18,000. द सेकेंड इफेक्ट तो बनता है. सो डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ओनली वन आइटम 2000. ओके, सो आई होप आप लोग थोड़े जल्दी, बट यू आर जल्दी में होता क्या, थोड़ा तो स्पीड, एटलीस्ट यू ट्राई, यू टेल योर माइंड कि भाई लिखना है हमको जल्दी. एंड देयरफॉर आई सिलेक्टेड अ क्वेश्चन वेयर देयर इज नथिंग न्यू फॉर मी टू एक्सप्लेन. ओके, इंश्योरेंस भी था, बट दैट्स ओके. हमने एटलीस्ट, मुझे तो लगता है कि दैट्स ओके. फोर्थ, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स. व्हाट, प्लीज नोट, डाउटफुल नहीं बोला, रिजर्व नहीं कहा, सिंपल है, बैड डेब्ट है. डेटर ने आपका बैड डेब्ट कराया कितने का, 1200, ये ऊपर पड़ो, तो डेटर से माइनस कर लो, कर देते हैं जी, नो प्रॉब्लम, डेटर से माइनस कर लेते हैं. ओके, फर्दर बैड डेब्ट या एडिशनल बैड डेब्ट, आप दोनों वर्ड में से कुछ भी यूज़ करो या दोनों यूज़ करो, ऐसा फॉरवर्ड स्लैश डाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाहर के कॉलम में आंसर जाएगा. देयर इज़ नो RDD, कोई RDD का बखेड़ा बिल्कुल नहीं है. सेकेंड इफेक्ट है ना,
दिस इज अ स्पेशल फॉर्मूला एंड दैट्स इट। फिर RDD का लाइक आई सेड ना कोई बखेड़ा नहीं, तो आंसर बाहर डाल दो 1700, दोनों ऐड करके 1700। 5 we have done this once but तो भी I'll try to go slow। goods of 5000 were destroyed by fire। ये आग कहाँ पे लगी है? तो बुरी खबर, बट ना बिजनेस इज उतार चढ़ाव, अप डाउन, इट हैपन्स ओके। तो मतलब यू शुड हैव दी, उतना धैर्य होना चाहिए, उतना करेज होना चाहिए कि जब थोड़ा झटका लगता है, थोड़ा हिट होता है, लाइक ओके चल गाड़ी को लग गई नो प्रॉब्लम, बट गाड़ी तो चलती जानी चाहिए। अच्छा कितना क्या हुआ? वेल 5000 की गुड्स को आग लग गया, हाँ तो क्या करें? फेंक दो। यू विल फील बैड, बुरा लगेगा, आप बोलेगा अरे नहीं इतनी मेहनत से मैंने बनाया था, इतनी मेहनत से मैंने खरीदा था, इतने मेहनत से मैंने बचा के रखा था, बट पुराना जाएगा तो नया आएगा ना, ऐसा है, फेंक दो। क्योंकि बिजनेस में जो गोडाउन होता है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो यू हैव टू मेक स्पेस फॉर द न्यू, द ओल्ड हैज़ टू गो, स्पेशली इफ इट इज़ बर्न्ड ओके। गोडाउन से, फैक्ट्री से 5000 का माल फेंक दो, फेंक दिया, goods destroyed by fire 5000, credit what goes out। but a good businessman, a sensible businessman, a समझदार businessman अपने बिजनेस को, अपने फैक्ट्री को, अपने ऑफिस को, जैसे आपके मम्मी पापा अगर समझदार है जो होने चाहिए, उन्होंने अपना बीमा लिया होगा, मतलब इंश्योरेंस। सो होता क्या है, सी इंश्योरेंस टुडेज डे एंड एज, आजकल की जो दुनिया है ना, मे बी यू डोंट लाइक मी सेइंग दिस, हो सकता है कि आपको पसंद ना आए जो मैं कहने जा रहा हूँ, कि व्हेन योर पापा मम्मा गोज आउट इन द मॉर्निंग टू वर्क, आई बी वेरी फ्रैंक टू यू कि देर इज़ अ फियर, एक डर होता है शाम को आएगी कि नहीं आएगी। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी टेक इट फॉर, हम हल्के में लेते, दे आर गोइंग, दे विल कम बैक। इनफैक्ट बहुत बच्चे तो ऐसा बोलते हैं ना, इन आई वॉज ऑल्सो वंस अ किड कि जाओ ना, आप जाओ ना, बिकॉज दे हैव सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जाओ ना, गो टू योर वर्क ना, गो टू योर वर्क ना। बट देन माय डियर, ऑन अ सीरियस नोट, द वर्ल्ड इज गेटिंग सो अनप्रिडिक्टेबल दैट मे बी कभी वापस ना आए तो, हाँ, सो योर मॉम एंड डैड दे ऑल्सो नो दैट, दे नो द ट्रूथ, सो दे टेक देयर इंश्योरेंस okay, they take life insurance, this is a different thing, this is fire insurance, but they take their life insurance. So if something happens to them, they are like okay fine, I can't obviously after my death go to work, but the insurance company will pay my family a claim, okay. So similarly here the insurance company is saying they will pay 2000, when I don't know, maybe 2 months, 3 months, but they will pay। insurance claim receivable 2000, 5000 का आपका माल जल गया, 2000 insurance company is going to pay। why is it receivable? well, when you have to fill a form, online form, and give it to the insurance company, okay, they will do their investigation, which is very important, they have to do their investigation। like example, गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि जिन भी फैमिलीज़ के अंदर कोविड के कारण मौत हुई है, देयर इज अ डेथ इन द फैमिली बिकॉज ऑफ कोविड, दैट फैमिली मेंबर्स द गवर्नमेंट विल पे अ कॉम्पेंसेशन सो दैट द फैमिली कैन बी हेल्प्ड। बट विल there have been many people in the second wave, in the first wave, that unfortunately are dead because of the pandemic, okay, but there are other deaths also जो कोविड के कारण नहीं रहेंगे। देयर आर सम फैमिलीज जो चीट कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं नहीं हमारी फैमिली में जो डेथ हुआ था वो कोविड की वजह से हुआ था। अब गवर्नमेंट तो सबको बांट नहीं रही है ना पैसा, गवर्नमेंट बोलेगी हाँ ओके हम समझते हैं कि डेथ हुआ था, हमको पहले ढूंढने दो कि रीज़न क्या था डेथ का। सो दे विल इंक्वायर फ्रॉम द म्यूनसिपालिटी, दे विल इंक्वायर फ्रॉम द डॉक्टर, कुछ तो इंक्वायरी करेंगे, एंड व्हेन दे कंफर्म दे विल से अच्छा पेपर वर्क सही है, देन ओनली, बिकॉज पेपर वर्क होता है ओके, कि जब लाश को गाड़ा जाता है उसके पहले भी ऐसे नहीं कि भाई शमशान में लेके गए और गाड़ दिया, नो, देयर हैज़ टू बी पेपर वर्क, इट हैज़ टू बी चेक्ड कि बाबा द पर्सन इज डेड ना एक्चुअली में, ओके, व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ, पोस्टमार्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पेपर वर्क होता है। तो उसी तरह ये इंश्योरेंस का 2000 मिल जाएगा, बट पहले पेपर वर्क होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तहकीकात होगी, ओके। मैं कहता हूँ ना कुछ तो गड़बड़ है, द इंश्योरेंस कंपनी विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट क्या गड़बड़ है, दे विल ट्राई टू
find out. Okay, so when you hear in a sea there is a big oil tanker ship जल गया, जलने के कारण डूब गया, so किसका गलती था? whose fault was it? the crew, the captain, और जिन लोगों ने लोडिंग अनलोडिंग किया उनका? इंश्योरेंस, बिकॉज वो भी इंश्योर्ड रहता है, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी विल आस्क फॉर द शिपिंग कंपनी विल आस्क, ओके, सब लोग पैसा पूछेंगे, इंश्योरेंस कंपनी जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेगी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज दे हैव टू फाइंड आउट, ओके। हाँ, तो नुकसान आपका कितना हुआ? देखो भाई, आपका नुकसान 3000 का हुआ, उसको ऐसे लिखा जाता है लॉस बाय फायर एंड इट इज़ 3000, दैट इज़ योर लास्ट adjustment for this particular problem, because the last, मतलब इसके बाद पॉइंट है बट इट्स ओनली सेइंग दैट द रेशियो इज 2:1, जिसका टाइम आ गया अभी यूज़ करने का। तो पहले तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है, तो चलिए हम लोग ढूंढ लेते हैं। डेबिट का टोटल इज 62,400 विच इज़ लेस देन द क्रेडिट, सो क्रेडिट इज मोर 1 century, okay, 1,05,000, difference is the GP 38,100, gross profit carried down. Pick it up from here, go to the next page, तो मैं वही करता हूँ, I'll go to the next page and then debit total ढूंढ लेता हूँ 32,100, still it is less क्योंकि credit में it is 38,100, इतना ज़्यादा नहीं है बट है ज़्यादा, सो जो डिफरेंस आता है विच वी कॉल एज नेट प्रॉफिट 6,000। नॉर्मली इनफैक्ट कितने प्रॉब्लम्स में हमने इक्वल किया है, बट नॉट टुडे, नॉट इन दिस प्रॉब्लम, इसमें कहा था 2:1, ओके, वरना वो जो कहाँ गए ना, गार्डन में घूमने वाली फीलिंग है ना, वो गार्डन वाली फीलिंग चली जाएगी अगर आप गड़बड़ करोगे तो इन सच ए सिंपल प्रॉब्लम। सो इट इज़ 2/3 1/3, 6,000 इंटू 2/3 1/3। फॉर्चुनेटली डेसिमल का बखेड़ा नहीं है, तो बड़ी ईमानदारी से 4,000 2,000 आता है। पिक इट अप, पिक कर लो एंड कंटिन्यू करो। सो अबाउ ब्रॉट डाउन, श्रेयस का टोटल करो, मृणाल का टोटल करो एंड बैलेंस कैरी डाउन ढूंढ लो। डेबिट में देयर इज नथिंग, इनफैक्ट मतलब मैं भी ऊपर नज़र मारूँ तो मुझे भी सिंपल विदाउट कैलकुलेटर टोटल हो सकता है, वैसे भी परमिटेड नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग। हाँ, तो 39,000 डिफरेंस आएगा, 39,000, 22,000 फॉर ब्रूनल, डिफरेंस आएगा 22,000। सो दैट्स योर बैलेंस विच विल गेट ट्रांसफर्ड टू द लाइबिलिटी साइड, जो आज तक होते आया है और आगे भी होगा। द एडिशन ऑफ बोथ द कैपिटल्स गिव्स दिस आंसर 61,000। ओके, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमारा टीचर, हमारे प्रोफेसर कॉलेज में अलग अलग लिखते, हम लोग कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अलग अलग लिख लीजिए, ओके, मतलब मार्क्स तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे। टोटल ऑफ लाइबिलिटी 1,22,600 एंड टोटल ऑफ एसेट 1,22,600। ओके, आई कैन कॉन्फिडेंटली से व्हाट, अरे ये तो पक्का आपको समझ में आया देगा, बिकॉज जेन्युइनली स्पीकिंग मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, थोड़ा मैंने जोर दिया ऑन गुड्स लॉस बाय फायर and then the insurance claim, but otherwise it's been a chill problem. In fact, if I look at my clock, it's barely half an hour, so it's one of the very cute and small problems. हमने तो इससे कम, we have done problems जहाँ पे बैलेंस शीट नहीं था, जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं था, उसमें भी 30-35 मिनट्स चले गए, बट ये तो पूरा सम सॉल्व हो गया हमारा। सो इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम, इट्स अ रीजनेबल प्रॉब्लम, ओके। इतना सिंपल नहीं आता एग्जाम में, मे बी एक स्टेप, एक लेवल बढ़कर यू विल गेट some adjustments complicated here and there. We have got many problems like that, okay, so obviously the lectures will continue and don't worry, problem will not give you a problem. I'll explain everything to you, okay, whether it's an illustration or whether it is solved or whether it's a practice problem, okay. I hope आप सभी लोग आपके नोटबुक्स में लिख रहे हो, डोंट जस्ट व्यू, देखो मत, लिखना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं तो वही हाथ जड़ के आपसे पूछ सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ओके, कि प्लीज़ प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ हाफ मैथ्स, ओके। मैं किसी को समझाने की कोशिश कर रहा था आज कि भाई अकाउंट्स में होता क्या, मतलब आधा मैथ्स ही होता है, हाँ, तो प्रैक्टिस तो करना ही है ना, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन जो कुछ इतना नया नहीं था समझ में आया, प्लीज़ डेफिनेटली लाइक द वीडियो,
सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। ओके, दूर दराज इलाके में जो भी व्हाट्सएप पे आपको मिलते हैं, फेसबुक पे आपको मिलता है, इंस्टाग्राम पे आपको मिलता है, लिंक उनको हमारे लेक्चर्स का दे दीजिए, सो दैट many students know about the channel and they benefit from that. That's very important. Okay, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स का उपयोग हमेशा अवेलेबल है, आप वो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। अपने बड़ों का, अपने छोटों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जल्दी मिलेगी। ओके, बंदा यही होगा, पढ़ाई कुछ ऐसी होगी। ये हमारे सारे ओके सोशल मीडिया के हैंडल से आप इनके साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हो। टिल द टाइम वी मीट अगेन, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय।